Yesterday discussed regarding glycolysis. Okay, glycolysis is a process where glucose breaks down into pyruvic acid, which takes place in the cytoplasm, is known as glycolysis. This step takes place in cytoplasm of the cell. As you know, so many steps are involved. That means glucose, first of all glucose, then glucose phosphate, glucose 1,6 biphosphate, then dihydroxyacetone phosphate, 3-glyceraldehyde 3-phosphate, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoenol pyruvic acid, and then pyruvic acid. So these are the steps involved in the glycolysis. Yesterday I discussed you that the two steps are involved in the aerobic respiration. One is glycolysis and another is Krebs cycle. Yesterday I told you why it is called Krebs cycle. Why this cycle is called Krebs cycle? Krebs cycle, according to the name of the scientist, the name has given Krebs cycle. It is also called citric acid cycle because the first ever product is citric acid. Citric acid. Citric acid. Why the Krebs cycle is called citric acid cycle? Sir, because the first stable product of the Krebs cycle is citric acid. Why it is called TCA cycle? Because the first stable product of the Krebs cycle is citric acid, which contains the 3-carboxyl group. That's why it is known as TCA cycle. Now, yes, sir. Yesterday I discussed the steps which is called the biochemical puzzle. Biochemical puzzle means that pyruvic acid to acetyl coenzyme A. These steps of the Krebs cycle is known as biochemical puzzle. So today I am going to write about the Krebs cycle, flowchart of the Krebs cycle. Okay, write down it. Pyruvic acid. Pyruvic acid. Then acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Then citric acid. Then cis-aconitic acid. Nitric acid. Then isocytric acid. Isocytric acid. Then oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid. Then succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A. Then succinic acid. Succinic acid. Then fumaric acid. आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या लिखे हैं आप सर? Oxalosuccinic acid. यस सच्चा कोई आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, fumaric acid. Fumaric acid. सर हाँ. सर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बाद अल्फा कीटोन ग्लूट्रिक सर अल्फा कीटो भी तो होगा. तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड सर वो छूट गया. हाँ उसके वो छूट गया सर. Glutaric acid. Glutaric acid. Then succinyl CoA. ठीक है? Alpha keto glutaric acid, then succinyl CoA, fumaric acid, malic acid, then OAA, oxaloacetic acid. ठीक है? ये Krebs cycle.
Krebs cycle. This is Krebs cycle. Pyruvic acid to acetyl coenzyme A. Now 2NAD. 2NADH. 2. This one. Next. Isocyclic acid to oxalosuccinic acid. Here 2NAD. 2NADH2. ठीक है. Next one alpha ketoglutarate acid 2. Succinyl coenzyme. Here also 2NADH 2NADH2. Next, succinyl coenzyme 2GDP. 2GDP. क्या हो गया? Next, fumaric succinic acid to here 2FADH2. 2FADH2. अच्छा, next one, last one, oxaloacetic acid जो बनता है उसमें भी 2NADH2. This is the cycle, Krebs cycle. Okay. थोड़ा सा ठीक से लिखो इसको. सर हो गया. सर अल्फा कीटा ग्लूटारिक एसिड के बाद क्या लिखे हैं? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए. सक्सिनिल SCCI. सक्सिनिल कोएंजाइम ए. सक्सिनिल कोएंजाइम ए. उसके बाद सक्सिनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड, मैलिक एसिड. Complete. Richa Pallavi, complete. Richa. Hello. Yes, sir. यस सर कंप्लीट हो गया. अच्छा, ये स्टडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस स्टेट pyruvic acid to acetyl coenzyme A. Here this pyruvic acid to acetyl coenzyme A. ये जो स्टेप है, इस स्टेप का बारे में आज तक भी बहुत सारा इसमें कंट्रोवर्सी है. ठीक है. So many scientists. सर रिपीट कर दीजिए ना, क्या बोले? ये जो pyruvic acid से acetyl coenzyme A बनता है, this acetyl coenzyme कैसे बनता है? That is, it is till today unknown. So many scientists they are saying the intermediate product are formed. Okay, that's why this step is known as pyruvic acid to acetyl coenzyme A. It's known as the biochemical puzzle. Okay, ये कैसे बन रहा है कोई साइंटिस्ट आज तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है. And that's why this is known as this step is known as the biochemical puzzle. और उसमें बहुत सारा साइंटिस्ट बोल रहा है इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थायमिन पायरोफॉस्फेट और टीपीपी बनता है. थायमिन पायरोफॉस्फेट बनता है. ठीक है. टीपीपी और थायमिन पायरोफॉस्फेट इसमें बनता है. नाउ इसके बारे में लिखने का जो है लिख लीजिएगा आप लोग. हेलो. हेलो. यस सर. आप जो फ्लो चार्ट जैसे बनाए हैं उस हिसाब से लिख लोगे ना. ना हमको लिखाना पड़ेगा, डिक्टेट करना पड़ेगा. बताओ कैसे आप लोग लिख लोगे?
सर लिखवा दीजिए। लिखवा अच्छा। दीजिए सर। सुनो, एक चीज और भी है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को ईएमपी पाथवे बोलते हैं, उसके बारे में पहले लिखो। ग्लाइकोलाइसिस एक ऊपर में शॉर्ट नोट लिखो तो, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस pathway is also called EMP pathway. EMP pathway क्यों बोला जाता है? हेलो, किसी को आइडिया है ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है? दिस क्वेश्चन आता भी है। सर तो सर क्योंकि सर उसको थ्री साइंटिस्ट को मिलके बनाया था। एमडेन, मायरहॉफ एंड पर्नर्स, तीन साइंटिस्ट, एमडेन, मायरहॉफ एंड पर्नर। यस सर, इसलिए उसका नाम ईएमपी पाथवे पड़ा। मायरहॉफ, तीन साइंटिस्ट का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, थ्री साइंटिस्ट का। अच्छा, ये साइकिल को रद्द कर दे, सब बना लियो। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा, इसके बाद एमडेन साइंटिस्ट का नाम, तीन जो साइंटिस्ट का नाम एमडेन, EMBDEN, मायरहॉफ, MAYERHOF, मायरहॉफ एंड पर्नर्स, PARNERS। ये तीन साइंटिस्ट का नाम से इसका नाम हो गया ईएमपी पाथवे। देख लीजिए, इसका लिख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसको लिख लेना, क्यों इसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है? एमडेन, मायरहॉफ एंड पर्नर्स, तीन साइंटिस्ट के नाम से ये। नेक्स्ट आप लिखो क्रेब्स साइकिल के बारे में। पायरुविक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, according to the name of H.A. Krebs, the cycle is known as Krebs cycle. According to the name of the scientist H.A. Krebs, सर रिपीट कीजिए ना, क्या बोले आप? क्रेब्स साइकिल बारे में लिखाना है ना, अभी लोग तो बोले हैं। यस सर, यस Yes, सर, sir. रिपीट। According to the name of the scientist H.A. Krebs, लिखो, according to the name of the scientist H.A. Krebs, H.A. Krebs, this cycle is called Krebs cycle. Krebs cycle, लिखते चलो, Krebs cycle, the cycle is called Krebs cycle. Krebs cycle, okay. इसके बाद लिखो the pyruvic acid which is formed, the pyruvic acid which is formed, the pyruvic acid which is formed in the glycolysis, the pyruvic acid which is formed in the glycolysis is converted into acetyl coenzyme A. Acetyl is converted into acetyl coenzyme A,
A, coenzyme A, then it enters into the mitochondria. 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 Complete. Yes, sir. The first stable product is citric acid. The first stable product is citric acid. The first stable product is citric acid. Sir, stable product. Stable, S-T-A-B-L-E, stable product is citric acid. Citric acid. Then it is converted into cis-aconitic 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 acid. After then, it is converted into isocitric acid. Then it is after then it is converted into isocitric acid. Isocitric acid. Isocitric acid. Isocitric acid. Further, it is converted into oxalosuccinic acid. Further, it is converted into oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid. Next, after a series of reaction, it is converted into alpha ketoglutarate acid. Alpha ketoglutarate acid. Alpha ketoglutarate acid. Alpha ketoglutarate acid. Then it is converted into succinyl coenzyme A. Then it is converted into succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A. Further, it is converted into succinic acid. Further,
water, it is converted into succinic acid. Succinic acid. Succinic acid. Then fumaric acid and malic acid. Then fumaric acid and malic acid. Then fumaric acid and malic acid. Fumaric acid and malic acid. Fumaric acid and malic acid. Finally, it is converted into oxaloacetic 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 acid. ठीक है? Yes sir, हो गया. हो गया. इसके बाद अभी जो लिखेंगे जो बैलेंस शीट एक है, इसमें कौन बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन या बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस. तो हम लोग क्रेब्स साइकिल बैलेंस शीट ऑफ जो कहाँ को एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो इसको लिखना है. बैलेंस शीट rate of respiration. ठीक है. पहले आपका क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में पहले तो पायरुविक एसिड 2 नंबर 1, पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल CoA. इसमें कितना है 2NADH2 equal to 2 into 3 equal to 6 ATP. दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो. Yes sir. Yes sir. पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना? अच्छा ठीक है, इसको आपको छोटा कर देता हूं. इसमें 2 into 3 equal to 6 ATP. फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है? हेलो सर दिखाई दे रहा है. 6 लास्ट में 6 ATP होगा. ठीक है, 6 ये दिखाई दे रहा है. ओके सर. लिखना है. और भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ. रखो 6 ATP. ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक जो 1 NADH तो 3 ATP, तो 2 NADH 6 ATP. ठीक है, उसमें 2 NADH2 हो रहा है. देखोगे रिएक्शन में जो लाइफ से जो साइक्लिक पाथवे है उसमें 2 NADH2 उस स्टेप में 2 NADH2 रिलीज हो रहा है. तो 2 NADH2 ये भी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक NADH2 इक्वल टू 3 ATP. तो 2 NADH2 2 into 3 इक्वल टू 6 ATP. समझ में आ रहा है? हेलो एक. यस सर. हाँ, एक NADPH2 इक्वल टू 3 ATP. तो 2 NADPH2 इक्वल टू 6 ATP. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट वन आइसोसाइक्लिक एसिड. आइसोसाइक्लिक एसिड 2
oxalosuccinic acid, oxalosuccinic acid, इसमें भी 2NaBH2, इसमें क्या है 2 into 3 equal to 6 ATP, ठीक है। नंबर 3 अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ग्लूटरिक एसिड टू सक्सिनिल CoA, कोएंजाइम A, इसमें भी कितना है 2NADH2, NADH2, इसमें 2 into 3 equal to 6 ATP, 6 ATP। अच्छा नंबर 4 मैलिक एसिड, मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसमें आपका भी 2NADH2, इसमें 2 into 3 equal to 6 ATP। नंबर 5 सक्सिनिल CoA, सक्सिनिल CoA टू सक्सिलिक एसिड, इसमें 2GTP, 2GTP में इक्वल टू equal to 2 ATP। Number 6 succinic acid, to fumaric acid, इसमें 2FADH2, इसमें 2 into 2 equal to 4 ATP, टोटल 30 ATP। ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 8 ATP, टोटल ATP equal to 38 ATP। So net gain of ATP, gain of 38 ATP in aerobic respiration। हाँ ये आपका बैलेंस शीट टोटल, इसमें टोटल 38 ठीक, देख लीजिए 38 3 + 8 38 ATP दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो सर नेट गेन है, हाँ सर नेट गेन है, नेट गेन ATP कितना ATP रेस्पिरेशन से आता है, ठीक है। तो 38 ATP ये पूरा बैलेंस शीट बना दिए, कौन स्टेप में कितना ATP रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको हिसाब किताब पूरा जोड़ दिया मैंने,
38 आप लोग जानते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी होता है और क्रेब्स साइकिल से 30 एटीपी। तो क्रेब्स साइकिल से जो 30 एटीपी होता है ये कौन कौन स्टेप से होता है? ये इसमें NADH एक NADH2 टू 3 एटीपी। अच्छा, और एक लास्ट में GTP, GTP भी एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक GTP इक्वल टू 1 एटीपी, तो 2 GTP इक्वल टू 2 एटीपी। और एक है FADH2, ये भी एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक FADH इक्वल टू 2 एटीपी, तो 2 FADH2 इक्वल टू 4 एटीपी। ठीक है, टोटल जोड़िए इसमें 30 एटीपी, इसके बाद 8 होगा ग्लाइकोलाइसिस से और नेट गेन हो जाएगा आपका 38 एटीपी। ठीक है सर लैटर क्या होता है? क्या चीज? लैटर LATTER। लेटर? यस सर। लेटर तो किस में है? क्रेब साइकिल में है। यस सर, क्रेब साइकिल में। नहीं सुने हैं, अगर होगा तो किसी बुक में मिलेगा, लेकिन अभी तक हम सुने नहीं। लेटर, लेटर हाँ, LATTER सर। साइंटिस्ट का नाम नहीं, कुछ नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर होगा तो किसी बुक से मिल सकता है, लेकिन मैंने जो बुक फॉलो किया उसमें नहीं है। ठीक है, हम तो 2-3 बुक फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बुक। ठीक है, ओके सर, ओके सर, मिलेगा तो हमको बताओगे। ठीक है, ओके सर। ऐसा नहीं है जो हम ही सब कुछ जानते हैं और आप लोग अभी ऑथेंटिक है। अच्छा, एक चीज जान लो, जो यस सर। लेटेस्ट जो बुक निकल रहा है वो लेटेस्ट रिसर्च, क्यों ना बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है, मेनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये अप टू डेट होते जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। मान लीजिए आज जो है वो हम लोग जो पढ़ के आए हैं, अभी न्यू बहुत सारा चीज निकल रहा है कि नहीं? हम लोग 20 साल पहले पढ़ के आए, लेकिन अभी जो बुक मिल रहा है उसमें कुछ लेटेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद तुम लोग जो इन फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद में पढ़ोगे, कुछ और भी कुछ दिया जाएगा। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सबसे चेंजेस होता है। ठीक है, जो जितना रिसर्च मिलता है, फाइंडिंग्स मिलता है, उसको ऐड कर देता है। लेकिन एक चीज जान लो, कोई भी रिसर्च फाइंडिंग्स होता है वो तुरंत प्रिंटेड मैनर में बुक्स में नहीं जाता है, उसको प्रिंटिंग मैनर में स्टूडेंट्स का पास पहुंचने में कम से कम 10 इयर्स लगता है। ठीक है, कम से कम वो इंटरनेशनल लेवल में वो पब्लिश्ड होगा, पब्लिश्ड होने का बाद वो ओके होगा, तभी बुक में वो प्रिंटेड मैनर में स्टूडेंट्स को किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग स्टडी किए थे जेनेटिक्स में 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, हम लोग मास्टर डिग्री में स्टडी किए थे 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। लाइक एक जीन, it is responsible for the synthesis of 1 enzyme, but nowadays the students of the class 12 they are studying, हम ही पढ़ाते हैं 1 gene 1 polypeptide hypothesis। ठीक है, एंजाइम के बारे में है, एंजाइम के बारे में आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन में बहुत पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तो अगर 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को और भी फर्दर ब्रेक डाउन करके अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, तो 1 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 एंजाइम हम लोग स्टडी किए, लेकिन आज हम लोग पढ़ा रहा है 1 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड। सोच लीजिए कितना माइन्यूटली चला गया। एंजाइम इज प्रोटीनेसियस इन नेचर, आप लोग स्टडी किए। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है ना, अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड होता है, चेन होता है। तो इसीलिए उसको और भी बहुत डेलिकेट ब्रेक डाउन किया है, जो 1 जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड। इसीलिए क्या है, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेडिकल साइंस ये अप टू डेट होता रहता है। इसमें कोई नहीं है जो आज जो हम पढ़ा रहा है वही है, फिक्स्ड है, उसके बाद कोई अप टू डेट नहीं होता। एक गलत है, समझ रहे हैं ना, ये गलत है। और जितना आप लेटेस्ट बुक आएगा उसमें न्यू एंट्री हो। ठीक है, एंट्री होगा, हो सकता है। इसीलिए हम लोग को टीचर लोगों को क्यों दिया जाता है, जो स्पेसिमेन कॉपी बहुत सारे पब्लिशर्स देता है ना, इट इज स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल लिखा हुआ रहता है। पहले टीचर्स लोगों को दिया जाता है बुक देखने के लिए,
अप टू डेट उसमें कुछ गलत है, प्रिंटिंग कुछ है, तभी दिया जाता है। तभी आप लोग जब कंपनी टीचर से हजारों कॉपी वो टीचर्स को बांटते हैं, 1000-2000 कॉपी, कहीं से किसी टीचर से कुछ कंप्लेन नहीं आता है, तभी स्टूडेंट्स के पास वो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन जो ट्रेडिशनल बायोलॉजी, जो जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। These are called the traditional biology. इसमें जो हम भी पढ़े हैं, हमारा जो टीचर थे, लेक्चरर, वो भी जो पढ़े हैं, आज हम लोग भी वही पढ़ रहा है, तुम लोग भी वही पढ़ रहे हो, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है? जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये एकदम लेटेस्ट। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा स्टडी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको आप लोग देख लीजिए। और टाइम है कितना? तो नो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत लंबा है, इसमें 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, और तो संभव नहीं होगा, तो हॉलीडे का बाद ही होगा। ठीक है, तो इन द मीन टाइम हॉलीडे कब से है सर? सर हॉलीडे कब से है? हॉलीडे तो कल से है, आपका डायरी में जो स्कूल डायरी है उसमें कल से है, कल से लेके 26 तारीख तक, 27 को 27 को होगा। अभी क्या नोटिस आता है, क्या सर्कुलर आता है, तभी उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, लेकिन डायरी पे जो है, डायरी भी सेशन के लिए इसमें 22 से 26 तक छुट्टी है। ठीक है, दुर्गा पूजा। अच्छा, ठीक है, अगर मान लीजिए छुट्टी हो गया तो कोई बात नहीं, आज छुट्टी नहीं होगा तो छुट्टी तो होना ही है। तो ऑनलाइन क्लास होगा, अगर चांसेस बहुत कम ही है। तो लेकिन फिर भी जो डायरी हम लोग ईच एंड एवरी टाइम मेंटेन करते आ रहे हैं, स्कूल डायरी, उसमें जो हॉलीडे का जो है वो मेंटेन करते आ रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम ये दो चैप्टर जो है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, आप हॉलीडे होमवर्क है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत वाइटल चैप्टर्स है। ये दो चैप्टर छोड़ के बायोलॉजी का भी हो नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जूलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उसको भी पढ़ना, ये कॉमन चैप्टर हो गया। बॉटनी, जूलॉजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चैप्टर हो गया। कौन चैप्टर? ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड जेनेटिक्स। ये जो चैप्टर है ये सब क्या आप तो जानते हैं, जो बायोलॉजी 2 इसमें डिवाइड है, एक बॉटनी, एक प्लांट साइंस, एक एनिमल साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी। बट ये जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड जेनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर इस सबके लिए कॉमन है। ठीक है, जो जूलॉजी में इंटरेस्टेड है उसके लिए भी कॉमन है, और जो बॉटनी में इंटरेस्टेड है उसके लिए भी कॉमन है। तो ये सब चैप्टर एकदम बहुत वाइटल चैप्टर हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसमें ग्लाइकोलाइसिस ठीक से पढ़ोगे, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और उसमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपका C3 साइकिल, C4 साइकिल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब थोड़ा सा स्टडी करोगे। ठीक है, ओके सर, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, Same to you, sir. थैंक यू सर। पीयूष गोयल। यस सर। अच्छा, तुम लोग ने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं दिया है बायोलॉजी में, खाली No, जो एब्सेंट थे वही बायोलॉजी। अच्छा, मार्क्स जो मिला है ठीक है, अच्छा मार्क्स मिला है सबको, लेकिन 2-4 स्टूडेंट्स को बिलो 30 मार्क्स मिला है। वो थोड़ा सा एक बार हम मैनुअल जो लिस्ट है ना